آپ تمام صحافی بھائیوں کا بہنوں کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پر سپریم کورٹ کے باہر تشریف لائے۔ آج آپ کو بلانے کا مقصد یہاں پر آپ کے ذریعے پوری قوم کے علم میں لانا تھا کہ آج جس ادارے کے باہر ہم کھڑے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، یہ پاکستان کا انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور آج انصاف کے اپنے ادارے کی حالت یہ ہے کہ جج صاحبان تقریریں کر رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، بار کاؤنسلز میں جا رہے ہیں، بار رومز میں جا رہے ہیں، خطوط لکھ رہے ہیں، اور صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ آج اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ جہاں پر جج صاحبان یہ کہہ رہے ہوں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، تو باقی ملک سے یہ کیسی توقع ہے کہ وہ یہ مان لیں کہ عدلیہ آزاد ہے؟ آپ واقف ہیں اس چیز سے کہ پیکا لاء کے ذریعے آپ کی اپنی کمیونٹی کس جبر کا شکار ہے۔ ملک کے جو سیاسی حالات ہیں ان میں پولیٹیکل پارٹیز کو کس طرح وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اور ان حالات میں تمام پاکستان اور ہر وہ شخص جو کسی بھی ظلم اور زیادتی کا شکار ہو، اس کے پاس ایک ہی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جس کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے، جس کے بارے میں وہ کوئی امید رکھتا ہے کہ وہاں سے اسے کوئی انصاف ملے گا، اسے کوئی پروٹیکشن ملے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس ملک کی عدلیہ کو ایگزیکٹو کا ایک ذیلی محکمہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ آج ہم نے یہاں پر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے، اور یہ پٹیشن ہم نے 2 جج صاحبان سپریم کورٹ کے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان کا خط سامنے آنے کے بعد ہم نے یہ پٹیشن دائر کی۔ ان کے خط جو سامنے آیا اس سے ہمیں کیا پتہ چلا، اس ملک کے لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ قانون کے تحت ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنائی گئی تھی، جس کمیٹی کے 3 ممبران ہیں، اور 3 ممبران میں سے 2 ممبران نے یہ فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز ہیں وہ پوری کی پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر سنیں۔ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے فیصلہ کر دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے، لیکن اقلیت میں تھے۔ اکثریت سے کمیٹی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ معاملہ پوری کی پوری سپریم کورٹ سنے گی، لیکن یہ جج صاحبان کے خط کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ واقعہ ہوا کیا۔ ان کے خطوط میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اکثریتی فیصلے کو کس طریقے سے انہوں نے نظر انداز کیا۔ چیف جسٹس کا موقف رہا کہ میں نے غیر رسمی ایک مشاورت کی ہے سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان کے ساتھ، اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ رائے سامنے آئی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کر یہ کیس نہ سنیں۔ حضرت ہم قانون کے ادنا سے طالب علم ہیں۔ یہاں پر جو ہمارے دوست کھڑے ہیں، کالے کوٹ پہنے، ریاست آزاد صاحب ہیں، ظفر کھوکھر صاحب ہیں، نصیر کیانی صاحب ہیں، دیگر ہمارے جو بار کے عہدیداران وکلاء حضرات یہاں پر موجود ہیں، ہم ادنا سے قانون کے طالب علم ہیں، اور یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب ایک ایڈمنسٹریٹیولی کمیٹی نے اکثریت کے ساتھ فیصلہ دے دیا قانون کے تحت، تو اس کو آپ غیر رسمی مشاورت سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور آج ہماری پٹیشن کے اندر بھی ہم نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ وہ فیصلہ اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، ان کی غیر رسمی مشاورت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اور ہم نے یہ اپنی پٹیشن کے اندر استدعا کی ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو یہ حکم دیا جائے کہ اسی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق جو آج بھی فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو پٹیشنز آئی ہیں یہ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر سنے۔ آئینی بینچ ان پٹیشنز کو سننے کا اہل نہیں ہے۔ آئینی بینچ جو خود ایک کریشن ہے 26ویں آئینی ترمیم کی، وہ کیسے اس کو سن سکتا ہے؟ تو یہ موقف آج ہم نے رکھا ہے سپریم کورٹ کے سامنے کہ جناب آلریڈی ججز کمیٹی کے 2 جج صاحبان کا ویو پبلک میں سامنے آ چکا ہے۔ میں 26ویں آئینی ترمیم میں اس کے خلاف محترم اختر مینگل صاحب کے ساتھ
मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा के साथ, मोहतरम मोहसिन दावर साहब के साथ पटिशनर हूँ। मेरे हकूक मजरूह हुए, पटिशनर्स के हकूक मजरूह हुए, ये सुनकर कि अक्सरियती कमेटी के फैसले को जिस तरीके से खिलाफ कानून नज़रअंदाज किया गया है, हमारी इस्तदा है इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब का किया हुआ फैसला स्टैंड करता है और उस पर अमल किया जाए, और अमल करके 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जितने तमाम केसेस हैं वो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट सुने। आईनी बेंच की तरफ से सुनना, हम उसको खिलाफ कानून और खिलाफ आइन समझते हैं। हम उसको एजिटेट करेंगे, और ये आज पहला कदम है। हमने ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आके दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन इस इदारे की अपनी एक तारीख भी है। ये इदारा अनफॉर्चुनेटली, ये जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ जितने आज तक जराइम कमिट हुए, सियासी जराइम कमिट हुए, ये इदारा, ये प्रेमिसेस, ये क्राइम सीन है। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, क्राइम सीन ये इदारा है। डिक्टेटर्स को इस मुल्क में आइन के अंदर तब्दीली करने की इजाज़त दी गई, क्राइम सीन ये इदारा है, ये प्रेमिसेस है। पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ विक्टिमाइजेशन होती है, अदलिया खामोश रहती है। क्राइम सीन ये प्रेमिसेस है। सियासी जमातों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, उनसे उनके निशानात छीन लिए जाते हैं, जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाती है, सियासी लीडरान को जेलों में डाल दिया जाता है। जिस तरह आजकल इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, उनके केसेस नहीं लग रहे। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है उनकी अहलिया, उनकी बहनें, उनकी पार्टी के साथ, क्राइम सीन ये प्रेमिसेस हैं। जो आइन के साथ 26वीं आईनी तरमीम ने किया, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ किया, आज जो जुडिशरी एक ज़ेली महकमा बन चुकी है, और इस सूरत हाल को कबूल करने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे इल्म में है, इस कौम के इल्म में है। क्राइम सीन ये प्रेमिसेस है। तो आज हम आपका दरवाज़ा खटखटाने आए हैं, मोहतरम जज साहिबान, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब। हर दौर में इस कौम, आइन, सियासत, सियासी लीडरों के खिलाफ जो जराइम होते रहे, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आपका उनमें हिस्सा रहा। हम आपसे तब्दीली की तवक्को करते हैं। ये कौम आपसे सिर्फ इतना मुतालबा करती है कि इंसाफ के मुताबिक फैसला कीजिए। ये मत देखिए कि कौन ताकतवर कहां पर खड़ा है। आज हम आप ही के दिफा के लिए, ये जिस 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया की आज़ादी का गला घोंटा है, हम आज आप ही की दिफा के लिए ये चीज़ें एजिटेट कर रहे हैं। तो किबला मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, जागिए और इस रविश को बदलिए कि हर जुर्म में आप शरीक होते हैं। ये मौक़िफ़ था हमारा, ये आपके सामने रखना था, और ये पिटिशन हमने दायर कर दी है। मैं आप तमाम हज़रात का मशकूर हूँ, और अभी दरख्वास्त करूँगा स्पीकर साहब से कि वो आपके सामने चंद कलमात कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसील सी तो बात मुस्तफ़ा नवाज़ साहब ने बताई, और उसने अपनी पिटीशन के बारे में भी बताया। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के साथ हैं। जो जुल्म और जबर और जिस तरह बेतौकीरी हमारे इस्लामाबाद की चीफ जजेस के साथ हुआ, इसका सिर्फ ये चीफ जजेस नहीं है, ये पूरी जुडिशरी के साथ हो रहा है। हम अपने जजेस साहिबान को ये यकीन दहानी करवाते हैं कि आप लोग आपके लिए इंसाफ के लिए आते हैं, इंसाफ की तवक्को रखते हैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान से। अगर यहाँ इंसाफ पे कंप्रोमाइज़ हो और यहाँ जो है ना आवाम मायूस हो, तो बताए आवाम किधर जाएंगे। तो हम इस मौके पे जो हमारा अलायंस है वो आपके साथ खड़ी है। जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका हल्फ है, उसके साथ खड़ी है। हम कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। इमरान खान जो इस वक्त जेल में है, हम मेरिट पे उसके कैसे चाहते हैं, उसकी बीवी या जो दीगर हमारी कैदी जो इस वक्त जेलों में हैं, या जो हमारी बुनियादी
कानूनी हुकूक सलब की गई हैं। आपसे हम तवक्को रख रहे हैं कि जहाँ अदलिया आज़ाद होती है वहाँ कौम आज़ाद होती है। जिस तरह विल्सन चर्चिल ने कहा था, पूछा कि आया हमारे मुल्क में अदलिया आज़ाद है, इंसाफ होता है? जब अवाम ने कहा कि इंसाफ होता है तो उसने कहा हम शिकस्त नहीं कर सकते। इसलिए चीफ जस्टिस साहब, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान, हम आपके साथ हैं आपकी ड्यूटी के लिए। आप तारीख़ में अपना किरदार अदा कीजिए। खुदा न ख्वास्ता अगर लोगों की तवक्कुआत अदालतों से ख़त्म हो गई तो फिर तो जंगल का कानून होगा, बनाना रिपब्लिक होगा। हम इंशाअल्लाह ये तारीख आपके साथ लड़ेंगे, इंसाफ कीजिए, कानून की हुक्मरानी कीजिए और सुपरमेसी आप कॉन्स्टिट्यूशन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अदलिया का रोल किसी भी मुल्क के अंदर हर चीज़ को अपनी जगह रखने में बड़ा अहम होता है, क्योंकि अदलिया है जो इंश्योर करती है कि चीज़ें अदल और कानून के मुताबिक चल रही हैं, और कानून के मुताबिक जब चलेंगी तो अदल और इंसाफ होगा। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस वक्त सियासी बहरान है, माशी बहरान है, अमन अमान का बहरान है, उसकी एक वजह लोगों को इंसाफ ना मिलना है और लोगों को उनका हक ना मिलना है। जैसे कि मुस्तफ़ा भाई ने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर फांसी लगे हैं यहीं से। आमिरों को इजाज़त दी गई है कि आइन के साथ खुलवाड़ करें यहीं से, और वो चीज़ें भी दी गई जो उन्होंने नहीं मांगी थी, वो भी उनको इख्तियारात दे दिए गए। मेरे ख्याल में जब आप हल्फ उठाते हैं कि हम आइन के मुताबिक चलेंगे तो फैसले भी कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक करेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर जजेस जानबूझकर ऐसे फैसले करें जो डिक्टेट शुदा हों, जो आइन और कानून के मुताबिक हों, क्या अदल की कुर्सी पर बैठने के लिए उनकी लेजिटिमेसी बाकी रहती है? वो इस काबिल हैं कि उस कुर्सी पर बैठें और फिर वहाँ पर बैठ के मुनसिफ बनने का दावा भी करें और वो चीज़ें भी ज़हरी शक्ल सूरत भी बना लें? मेरे ख्याल में जब जज अदल का कत्ल कर देता है, इंसाफ का कत्ल कर देता है अपने फैसलों से, फिर वो हक नहीं रखता कि वो उस कुर्सी पर बैठे। और पाकिस्तान सबके सामने है, जितने भी बहरानात हैं उसकी एक बड़ी वजह जो है वो यहाँ पर है। अगर हमारी पार्लियामेंट पैरालाइज हुई है, यहाँ से हुई है, ये खुद पैरालाइज हुए हैं, यहाँ से हुए हैं, हर चीज़ यहाँ से हुई है। अगर पाकिस्तान के अंदर हमारा जो 2024 8 फरवरी का इलेक्शन लूटा गया है, उसकी जड़ भी यही है, लाकानूनियत पर है। इसलिए कब तक पाकिस्तान को तबाही बर्बादी की तरफ ले सैलाब में गर्क हो रहा है। पाकिस्तान लाकानूनियत के तूफान में गर्क हो चुका हुआ है, तबाह बर्बाद हो रहा है। खुदा के लिए इस पाकिस्तान को बचाएं। देखें, इमरान खान से लोग क्यों मोहब्बत करते हैं? वो सच्चाई के साथ खड़ा है, सच बोल रहा है, झुक नहीं रहा है। अगर आप भी सच्चे फैसले करेंगे, कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, लोग आपको अपने सर का ताज बनाएंगे, आपकी इज्जत और वकार होगा, कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकेगा और आप सदियों जिएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों की जो है ना रुसवाई भी है और रूसियाई भी है। मुझे उम्मीद है कि एक वक्त ज़रूर आएगा, पाकिस्तान के अवाम डिजर्व करते हैं कि उन्हें अदल और इंसाफ मिले और पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान के दायरे चले। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बुनियादी तौर पर पार्लियामेंट में आपको दीवार से लगाया जा रहा है, यहाँ तक कि आप इस्तीफों की तरफ चले गए हैं। जो सियासत है आपको वहाँ नहीं करने दी जा रही, आपकी पार्टी को जो है मतलब आप कह रहे हैं कि रियासती इंतकाम का निशाना बन रही है। आपने अदलिया से आपको इंसाफ नहीं मिला, ना पार्लियामेंट में आपकी जगह है, ना अदलिया में आपके लिए इंसाफ है, ना सड़कों पर आपके कारकुनान को आने दिया जाता है। ये निज़ाम और ये रियासत कहाँ जा रही है? देखिए, हम तो अवाम हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी जो है ना एक पुरअमन जद्दोजहद कर सकती है, अपनी आवाज़ उठा सकती है। हम इस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएंगे। इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक उन्होंने जो बनाया है, इससे निकालने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, जद्दोजहद, और वो जद्दोजहद हम कर रहे हैं। हम इसकी जुल्म और जबर और जो इसकी फाशिस्ट रवैये हैं, इससे न डरते हैं न पीछे हटते हैं। हम अपना जमहूरी, आइनी और कानूनी जद्दोजहद को जारी रखते हैं। खोखर साहब, सबसे पहले आपने आइन शिकने की बात की, तो मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये है, और आप उस चीज़ के विटनेस हैं कि तरीके इंसाफ पे आइन शिकने का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नोट्स है कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इमरान खान और आरिफ अलवी के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 का कार्रवाई चलाया जाए, तो वो भी तो एक आइन शिकनी हुई थी जब पूरे के पूरे पार्लिमान को इन्होंने जो है वो तहस नहस कर दिया था, आइन को उठा के बाहर फेंक दिया। एक बात,
दूसरा ये मेरा सवाल है कि जो आपने मरकजी पटिशन यहाँ पे दायर की है उसमें आपने एक मेरा वो है कि मफरूज़े पे बुनियाद पे की है, क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के इजलास की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आइनी तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक वो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस बुलाने का जिम्मेदार है? क्या चीफ जस्टिस को बाईपास करके जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह अपने तौर पे इजलास बुला सकते हैं? अगर उन्होंने ऐसा इजलास बुलाया है तो क्या ये खुद उनके ओथ की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये खुद उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की और आज एक गलत उनके फैसले को बुनियाद बना के आपने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है? तो क्या मैं मान लूँ कि पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी पार्टी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद, वहाँ से सीखने के बावजूद आज आप तहरीक इंसाफ जो आइन शिकन है उसकी प्रॉक्सी बन चुके हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो पर्सनल कमेंट है मैं उसको नज़रअंदाज करता हूँ, क्योंकि बतौर सहाफ़ी आपका काम है कि हम आपको जवाब भी दें और आप हमसे सवाल भी पूछें, लेकिन पर्सनल कमेंट जो है वो देना मेरे ख्याल से गैर मुनासिब है। लेकिन बार तौर आप फिर भी भाई हैं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। गुजारिश ये कि आपने कहा ये एक फ़र्ज़ी कहानी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मकसद क्या था? वो किस माहौल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कानून बनाया गया? वो उस माहौल में बनाया गया कि जहाँ पर फ़र्द वाहिद का जो ओहदा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा था, वो पाकिस्तान की तारीख़ में और ख़ुसूसन पिछली 2 दहाइयों में हमने देखा कि वो किस तरीके से केसेस की फिक्सिंग, बेंच फिक्सिंग में वो ओहदा डायरेक्टली इन्वॉल्व था। और हमारी इस मुल्क में जो पस पर्दा क़ुव्वतें हैं वो इस ताकत के ज़रिए वो बेंच की फॉर्मेशंस कंट्रोल करती थी, जिसके अंदर कोई इंसाफ का ताल्लुक नहीं था। और यही जो जमातें हैं जिन्होंने ये कानून पास किया, उन्होंने इस चीज़ को ठीक करने के लिए कानून पास किया, क्योंकि वो भी इस चीज़ के विक्टिम रहे। तो क्या आज जो स्पिरिट था कानून का, क्या वो आज अपनी जगह पर कायम है? क्या वो स्पिरिट कि जिसके अंदर ये फैसला किया गया था कि मेजॉरिटी का जो फैसला होगा वो सारों के लिए एक्सेप्टेबल होगा, तो जब चीफ जस्टिस साहब अक़लियत में चले गए, अक्सरियत ने एक फैसला कर दिया, तो फिर हम वापस रिवर्ट कर जाएं और उस कानून की नफ़ी कर दें और उन्हीं पसपुर्दा क़ुव्वतों और ताकतों के हाथ में दोबारा अदलिया का इदारा पकड़ा दें? तो ये सूरत हाल तो किसी भी सूरत पार्लियामेंट की इंटेंशन नहीं थी, लेजिस्लेचर की इंटेंशन नहीं थी। और दूसरी बात जो आपने कही, जो पीटीआई के किरदार के मुतालिक, देखें इस मुल्क में कौन सी ऐसी सियासी कुव्वत है, हम में से कौन से ऐसे लोग हैं, इवन मीडिया में से, कि जिन्होंने इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना हिस्सा नहीं डाला? इसीलिए हम बात करते हैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की। देखिए मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, सारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मैं अब वो बातें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक ज़िमनन आपको इशारा कर देता हूँ कि हम भी बड़ा तड़पे अजब करप्शन और गजब कहानियों के प्रोग्रामों से, तो हर किसी ने अपना हिस्सा डाला है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन हो, जिसके अंदर तमाम फ्रीकैन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रहा है, लेकिन पॉन्स और पपेट्स का किरदार अदा करने वालों की भी कमी नहीं रही। हर कोई सामने आए, अपने हिस्से की गलतियों को तस्लीम करे, हम अपने हिस्से की गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। और जब तक हम ये अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे, माशरे में से पोलराइजेशन नहीं ख़त्म होगी और माशरा आगे नहीं बढ़ेगा। सियासी इख्तलाफात हम रखना चाहते हैं, आपकी राय का बहुत एहतराम है, और इंशाअल्लाह हम चाहते ये हैं कि सियासी दुश्मनियाँ, इदारों के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए इदारे, कि वो सारे अपने आइन के तय करदा असूलों के तहत काम करें और माशरे में से ये पोलराइजेशन ख़त्म हो। ये हमारी कोशिश है और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। एक और बात है बस देखें, ये वाला पाकिस्तान 71 16 दिसंबर के बाद वजूद में आया, ठीक है। इस पाकिस्तान के अंदर 72 से शुरू करें अभी तक तकरीबन 53 साल हुकूमत है। 53 साल इमरान खान ने की है, 50 साल किसने की है? उनके गिरबान में कभी आपने हाथ डाला है? कभी उनसे पूछा है कि मुल्क क्यों तबाह किया आपने? 3 साल वाले के पीछे आप लगे हुए सब रोज, जिन्होंने 50 साल मुल्क को लूटा और तबाह किया है, उनके पीछे क्यों नहीं जाते हम लोग? इंसाफ कहाँ है, अदल कहाँ है? मेरे भाई सच बोलना चाहिए,
और पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए, हकीकत को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हकीकत लोगों तक पहुंचेगी, और पहुंची हुई है, आज 90% लोग एक तरफ है, डूबे हुए हैं। आज जो पाकिस्तान की तबाही के जो किस्से और कहानियाँ दुनिया के सामने, वो अजीब है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे, अक्ल प्रिवेल करेगी, और वो लोग जिन्होंने अवाम का हक लूटा है, इलेक्शन लूटा है, वो इंशाअल्लाह अवाम के सामने उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं, और वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि अवाम को फेस कर सके। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।